Assalamu alaikum students. I'm delighted to introduce you the book of science of grade 6 which is included in your course. It is privileged to have the opportunity to share you insight and knowledge about this fascinating subject science. As we embark on this journey of discovery, we will dive deep into the world of science. Whether you are already familiar with it or it's entirely new to you, I hope that by the end of this lecture, you will gain a deeper understanding of science. Throughout our time together, we will study chapter number 1, Organ System of Our Body of your book. Together, without further ado, let's begin our exploration of organ system of our body. So, the introduction question is, what do you know about organs? Organs के बारे में आप क्या जानते हैं? All animals, including human beings, contain several organs which in turn made up of tissues. For example, in heart is an organ which pumps blood to circulate it to the all parts of the body. And ear is an organ of hearing. Lungs are organs of respiration. तमाम जानवरों के साथ इंसान के भी जो अज़ा हैं वो टिश्यूज़ से बने हैं। जैसे कि हमारा जो दिल है वो बना है टिश्यूज़ से, कार्डिक वैस्कुलर टिश्यूज़, जो कि हमें पूरी बॉडी में खून पहुंचाता है। और जो हमारे कान हैं, जो हमारा कान का अज़ा है वो हमें सुनने में मदद देता है। और जो हमारे लंग्स हैं यानी जो हमारे फेफड़े हैं वो हमें सांस लेने में मदद देते हैं। Stomach, liver, lungs and kidney are few important organs of our body. Can these organs work independently? No, all the organs of our body work in coordination with each other. हमारा मैदा, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, दिल ये सब हमारे जिस्म के अहम अज़ा हैं। क्या ये अलग अलग काम कर सकते हैं यानी इनफरादी तौर पे काम कर सकते हैं? नहीं, ये हमेशा एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी हमें एक ऑर्गन सिस्टम वजूद में आता है। जब हमारी बॉडी के कुछ अज़ा यानी ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं तब एक ऑर्गन सिस्टम वजूद में आता है। हमारी बॉडी का हर ऑर्गन सिस्टम सिर्फ एक ही काम करता है। In this unit, you will study about different organs of our human body. इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी इंसानी जिस्म में मौजूद हैं। Here are some organ system of our body, included which digestive system, respiratory system, circulatory system, nervous system, excretory system, urinary system, reproductive system, muscular system, skeletal system, and endocrine system. In this chapter, we will study about some of them. As you can see, here are some diagrams of organ system of human body. First one is respiratory system, excretory system, nervous system, circulatory system, and digestive system. The digestive system is like a factory inside of your body that helps you break down the food you eat into smaller pieces so your body can use it for energy and nutrients. जिस्म में डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी निज़ाम इंहिज़ाम है, वो हमारी बॉडी में खाने को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है। जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है और उससे जब वो पीसेस आगे हमारे पेट में जाकर ब्रेक होते हैं यानी टूटते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। एनर्जी यानी तवानाई मिलती है और हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसे हम ग़िज़ाइयत कहते हैं। It's all started in your mouth. When you chew your food, your teeth helps to break food into teeny bites and your saliva helps make it wet and mushy. निज़ाम इंहिज़ाम का सफ़र हमारे मुंह से शुरू होता है जहाँ हम खाने को चबाते हैं, जिसमें हमारे दांत उनको छोटे छोटे बाइट्स में कन्वर्ट करने में मदद देता है और जो हमारा सलाइवा है यानी हमारी जो थूक है वो उसे गीला करने में और उसे सॉफ्ट करने में, नरम करने में मदद देती है। Second part is esophagus. After chewing, the food travels down a long tube called esophagus and into stomach. This tube helps the move down of the food with the squeezing motion. ये खाना चबाकर जब
हमारे गले में जाता है उस गले की नाली को बोलते हैं एसोफेगस, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एसोफेगस। और ये नाली जो खुराक की नाली है हमारी मैदे तक जाती है। ये जो नाली है ये खाने को नीचे लेकर आने में यानी मैदे तक लेकर आने में मदद देती है। Then the food arrives into the stomach. Your stomach is like a big mixture. It's churned and makes the food with digestive juice to turn into a thick liquid called chyme. And then it travels to the small intestine. The chyme then moves into small intestine. This is where the most magic happens. Special juices and enzymes break the food even more and ensure body absorb the nutrients it needs. Large intestine, whatever your body can use, like fiber and waste, move into the large intestine. Water is removed and turns into stool, which your body gets rid of later. हमारा खाना जब मैदे तक आता है तो हमारे मैदे में होता है एक डाइजेस्टिव जूस जो कि हमारे खाने को एक मिक्सचर में कन्वर्ट कर देता है। उसको हम कायम कहते हैं। जब ये कायम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत तक पहुंचता है तो यहाँ पर स्पेशल जूसेस और एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे खाने को मज़ीद तोड़ते हैं और यहाँ पर हमारी बॉडी को जितनी भी एनर्जी यानी तवानाई की ज़रूरत होती है और ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है जस्ट कर लेती है। जब हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जज़्ब हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स जज़्ब हो जाते हैं, तो जो वेस्ट बचता है यानी जो हमारी बॉडी का जो फजला वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। वाटर इज़ रिमूव्ड, पानी हमारी बॉडी से जज़्ब हो जाता है और जो हमारा खाना है वो एक स्टूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारी बॉडी से थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाता है। ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। उम्मीद करती हूँ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने का अमल। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स only inhalation and exhalation of air. Air containing oxygen is taken in, inhaled, and air containing carbon dioxide is expelled यानी exhaled during breathing. ब्रीथिंग यानी सांस लेने का अमल ऐसा है जिसमें हम सांस अंदर लेकर जाते हैं यानी सांस को फेफड़ों तक लेकर जाते हैं और फेफड़ों से सांस बाहर निकालते हैं। जो हम सांस फेफड़ों के अंदर लेकर जाते हैं उससे ऑक्सीजन कहते हैं और जो सांस हम बाहर निकालते हैं यानी हम मुंह के ज़रिए फेफड़ों से बाहर निकालते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। The various organs which are used for utilizing of oxygen and respiration constitute of the respiratory system. The respiratory system of human being consists of the following organs, which is nasal cavity, larynx, trachea, bronchi and lungs. हमारा जो सांस लेने का अमल का सिस्टम है यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चंद अज़ा पर मुश्तमिल है जिनमें नेज़ल कैविटी यानी हमारा नाक का हिस्सा, लैरिंग्स यानी हमारी सांस की नाली, ट्रेकिया जहाँ से हम सांस की नाली जोड़ते हैं फेफड़ों तक, ब्रोंकाई जो कि ट्रेकिया आगे जाकर ब्रांचेस में डिवाइड होता है उसको ब्रोंकाई कहते हैं, जहाँ पर एल्वोलाई होते हैं जहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है यानी ऑक्सीजन कन्वर्ट होती है हमारे लंग्स में और लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो भी जाती है ट्रेकिया के अंदर। एंड लंग्स हमारे फेफड़ों को कहते हैं जिनमें ये तमाम प्रोसेस होता है। लंग्स आर 2 in number, are present in the chest cavity of your body. They are soft, light, spongy and elastic organs. Each lung is connected with trachea through its main bronchus in lungs. There are numerous alveoli or sacs which are richly supplied with blood capillaries. When air entered in the lungs, the blood taken in oxygen and given out carbon dioxide and water. This process of gas exchange takes place in the each alveoli. Blood then carries oxygen to the all part of the body from the lungs. हमारे जिस्म में 2 अदद फेफड़े मौजूद हैं जो कि हमारे चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं जो कि नरम, हल्के और इलास्टिक होते हैं। हर लंग्स हमारा ट्रेकिया से जुड़ा हुआ होता है और जिसमें बहुत सारे अल्वोलाई होते हैं। हमारे लंग्स में 1 मिलियन से ज़्यादा अल्वोलाई हैं यानी मिलियंस ऑफ अल्वोलाई हैं जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जहाँ पर ऑक्सीजन हम नाक के ज़रिए
ट्रैकिया में लेकर जाते हैं। ट्रैकिया से हमारी सांस एल्वोलाई में जाती है और एल्वोलाई में जो हमारी सांस है यानी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज में जाती है और हमारी जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन मिलता है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो रिटर्न हमारे एल्वोलाई में आता है और एल्वोलाई से हम और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट कर देते हैं। Our next system is nervous system. Nervous system is one such which bring about coordination in various body function. It is due to nervous system that we can feel changes in our environment and we are sensitive to heat and cold, pain, odor, etc. We feel changes through our senses: hearing, sight, smell, touch and taste. Our five senses, which we have ear, eyes, nose, skins and touch, are respectively sense organs to the perceive about the senses. The nervous system is made up of specialized cells called neurons. Nervous system consists of the following organs: brain, spinal cord and sense organs. हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, यानी हमारी बॉडी का जो एक सेंटर है वो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। यानी जितने ही फैसले हमारी बॉडी करती है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू करती है। जो हमें गर्मी, सर्दी, दर्द या खुशबू कोई भी एहसास होता है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है। नर्वस सिस्टम को जो रिसीव करने वाले ऑर्गन्स हैं वो हमारे हेयरिंग ऑर्गन्स हैं, साइट ऑर्गन्स हैं यानी हमारे कान, आँख, नाक, स्किन यानी जो हमारी खाल होती है, हमारी ज़ुबान, ये सब ऑर्गन्स तमाम स्टिमुलस को रिसीव करती है। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस वो होता है जो कोई भी चेंज हमें फील होता है उसको स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि हमें जब गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी को एक चेंज फील होता है, वो चेंज स्टिमुलस कहलाता है। और जो ऑर्गन उस स्टिमुलस को रिसीव करता है उसको रिसेप्टर कहते हैं। जैसे कि हमारी स्किन हीट को रिसीव करती है उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। और फिर ये ऑर्गन्स आगे नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचाते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू कि यहाँ पर चेंज आया है, इस बॉडी के इस पार्ट में चेंज आया है, इसको अब ठीक किया जाए। तो नर्वस सिस्टम आगे से मैसेज पहुंचाता है कि इफ़ेक्टर्स को कि इसको इस तरह ठीक किया जाए। जैसे कि जब हमें गर्मी लगती है तो हमारी हीट को कंट्रोल किया जाता है स्वेटिंग प्रोड्यूस करके। स्वेटिंग यानी पसीना जब हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो उस तरह फिर हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज किया जाता है। Last organ system of our body is skeletal system. This system consists of 206 bones which are made up of skull, backbone, ribs and limbs. The main function of this system is to support our body and protect our internal vital organs like brain, heart and lungs. It also helps in movement and making the body rigid. जो स्केलेटल सिस्टम है यानी जो हमारी बॉडी का ढांचा है वो 206 हड्डियों से बना है, जिनमें हमारा स्कल यानी सर की हड्डी, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, रिब्स यानी हमारी जो फसलियां हैं, लिम्स हाथ पाँव की हड्डियां शामिल हैं। इसका जो सबसे अहम काम है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करना है, यानी हमारी बॉडी को सहारा देता है और हमारे जो अंदरूनी ऑर्गन्स यानी अज़ा होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है यानी उनकी हिफाजत करता है। जैसे कि हमारे कौन से इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनकी हिफाजत करता है हमारी बॉडी, वो है ब्रेन यानी हमारा दिमाग, हार्ट, दिल, लंग्स, फेफड़े, ये सब ऑर्गन्स की हमारे स्केलेटन यानी जो हमारा ढांचा है वो हिफाजत करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट, ये हमें हरकत करने में मदद देता है और हमारी बॉडी को सख्त बनाने में यानी हमारी बॉडी को एक शेप देने में मदद देता है। I hope you all have learned today's lecture. Thank you for watching.